Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Kamran Shaikh. So basically, we are talking about the old age psychopharmacology. That's the topic because uh, two things happened in the last few weeks or months. एक तो ये कि एक किसी पेशेंट की पाकिस्तान में ड्रग इंटरेक्शन सामने आए और उसका भी मैं तस्करा कर देता हूँ कि वो ड्रग इंटरेक्शंस क्या थे। फिर ये कि किसी साइकाइट्रिस्ट ने मुझसे किसी ओल्ड एज के मरीज के लिए कांटेक्ट किया और डोजेस के बारे में डिस्कस किया। तो तो उसमें भी मैं समझ रहा था कि बस ये इसमें अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि डोजेस क्यों कम होनी चाहिए ओल्ड एज साइकाइट्री में। और दैट इज द मेन पर्पस एंड मेन फोकस कि जब हम some of the patients groups we need to use very low doses and some very low doses। तो ये जो स्पेशल पेशेंट ग्रुप्स हैं जिनमें लो डोज की ज़रूरत होती है, these are for example elderly people, learning disabled people, small children, और अगर small children with learning disability, with autistic spectrum disorders हों तो फिर और भी ज़्यादा हमें इसके लिए केयरफुल होने की ज़रूरत है और डोजेस को मज़ीद कम रखने की ज़रूरत है। तो फिर कुछ ऐसी होती हैं चीजें जिसमें यूजुअली we need low doses but sometimes we may need higher। I won't go into detail। So pregnancy is another condition क्योंकि teratogenic effects से prevent करने के लिए आपको low doses की जरूरत होती है। But on the other hand, especially in the third trimester, जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। And when the area of distribution is increased, maybe at the end of third trimester, you need you may need increased doses of some drugs, and then again after delivery you need lower doses because there is a sudden drop. So maybe near the delivery you may need to stop the medication for 1 week, otherwise you may end up in the toxicity। ये सारी जो हैं वो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स हैं प्रेगनेंसी की, ओल्ड एज की, रीनल इम्पेयरमेंट, autism, learning disability, children, hepatic impairment, all these special groups। But today we will not discuss about children। We have already discussed actually when we are discussing autism के कितनी डोज रखनी है उसमें, ऑटिज्म वाले बच्चों में कितनी कम डोज के साथ शुरू करना है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। And pregnancy we are not discussing today. So our topic of discussion today will be old age, plus we will touch the renal and hepatic impairment कि इसमें लो डोजेस क्यों रखनी चाहिए। सबसे पहले वो जो एक ड्रग इंटरेक्शन था वो मैं बता देता हूँ कि a 73-year-old lady was put on ondansetron, which is an anti-emetic and I think 5-HT3 antagonist or something. And similarly, the SSRIs are also, they have the same mechanism of action, 5-HT3 antagonism। So, and the interaction may lead to their interaction may lead to serotonin syndrome। टाइप की कॉल बंद करो। And then uh,
And then secondly, what happens is that तीसरी जो दवाई थी उसमें ट्रेमाडोल, अब वो भी SSRI के साथ इंटरेक्ट करेगी. The patient became very depressed all of a sudden after the surgery, after an orthopedic surgery, because surgery is a big trauma, is a big kind of stressful event in itself. So surgery और इसके जो cortisol levels and everything, that's all over the place. So basically, when the surgery happened, the patient went into deep depression. और नकीब साहब को अपने आप को अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लें काइंडली, डॉक्टर नकीब. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, तो व्हाट वी आर सेइंग इज के ऑन्डानसेट्रॉन और ट्रेमाडोल का जो कॉम्बिनेशन था, we just उसने जो है वो, that's also the same, that can lead to serotonin syndrome as well. Naqib, please abhi reduce kar दें, that would be very kind, thank you. And then after the ondansetron, so when you go for the drug interactions of ondansetron, fluoxetine 20 milligrams plus tramadol, it's तीनों दवाइयां जब मिल जाएंगी और उसके बाद फ्लोक्सिटीन, a long acting SSRI which can stay for even up to weeks for in the system, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबका जो वो है 5HT रिलेटेड इसका जो है वो फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन होगा और उसके बाद the patient can go into toxicity. So what should have been done in that case के पहली बात तो ये कि ड्रग इंटरेक्शंस को देखना चाहिए था. दूसरी बात ये है कि शॉर्ट अगर देनी ही थी तो शॉर्ट एक्टिंग दवाई देते और थोड़ी डोज में देते. फॉर एग्जांपल सर्ट्रालीन 12.5 milligrams और सर्ट्रालीन 25 milligrams इन दैट पेशेंट, तो ताकि वो, और फिर उसके बाद ऑन्डानसेट्रॉन को बंद करके कोई और एंटीएमेटिक दे देते जो इंटरेक्ट ना कर रही होती, ट्रेमाडोल की जगह कोप्रोक्सामोल दे देते. सो दैट्स द थिंग्स वी नीड टू बी अवेयर. और एज लिएजॉन साइकियाट्रिस्ट जब हमें वार्ड्स में, मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड्स में जब बुलाया जाता है, तो वी शुड ऑलवेज लुक एट ड्रग इंटरेक्शंस के, इसमें कौन कौन सी दवाई पे चल रहा है मरीज, और इसको अगर कोई ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं हो जाएंगे हमारे किसी दवाई देने से. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स, and I go to the slide sharing option. So share and share screen, start sharing Microsoft PowerPoint. And hope you are seeing my slides now, I presume. So yes, and then the ribbon is already, so so similarly, अगर वो जो 73-year-old पेशेंट थी, वी डोंट नो कि उनका हेपेटोरीनल फंक्शन क्या था. आई प्रिज्यूम के ठीक था, लेकिन एल्डरली में वैसे ही EGFR कम हो जाता है, तो अगर तो उनमें रीनल इंपेयरमेंट हो तो और भी ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है. सो जनरल प्रिंसिपल्स, वी यूज less number of medications and in the minimum possible doses. But why? What's the reason कि हमें कम दवाइयों की तादाद रखनी है और कम ही उसकी जो है वो मिकदार, अमाउंट, वो भी कम रखनी है. क्वांटिटी भी कम होगी, नंबर ऑफ मेडिकेशन भी कम होगा, अमाउंट ऑफ मेडिकेशन भी कम होगी, डोज भी कम होगी. तो फॉर एग्जांपल जो प्रोसाइक्लिडिन है, यू आर नॉट सपोज टू गिव इन एल्डरली पॉपुलेशन एट ऑल. अगर आपको
लग रहा है कि प्रोसाइक्लिडिन की जरूरत पड़ रही है, आप एंटीसाइकोटिक की डोज को ही इतना कम कर दें कि प्रोसाइक्लिडिन की जरूरत ही ना पड़े, because less than 3 milligrams of haloperidol in elderly, you may not need procyclidine. अगर फिर भी पड़ रही है और कम कर दें, and hopefully it will work in elderly population. तो बजाय इसके कि आप प्रोसाइक्लिडिन दें, आप उसकी डोज को ही कम कर दें ताकि प्रोसाइक्लिडिन की जरूरत ही ना पड़े. The reasons for this is older people often have number of concurrent illnesses. So they may require treatment with several drugs, and they control over reflex actions such as blood pressure. Temperature regulation is also reduced. उनका blood pressure जो है वो ऊपर नीचे जाता रहेगा. इसके अलावा उनको काफी ज्यादा जो है मेडिकेशंस ऑलरेडी चल रही होती हैं, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, एंटीकोएगुलेंट्स उनको चल रही होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव चल रही होती हैं, इंसुलिन में आल्सो बी देयर. तो if they are asthmatic तो अस्थमा की चल रही है. If they are heart patients then maybe something glycerol trinitrate, things like that. And if they are having infection then antibiotics. Which antibiotic is the most kind of notorious to be used with? Okay, slides nahi aa rahi. Which antipsychotic is the most notorious with to be used with antipsychotics and as psychotropics? Which antibiotic you would avoid? Which antibiotic सर will you avoid with psychotropic medications? सर वो जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करवाएं ऐसी ड्रग्स. अच्छा, अब स्लाइड्स आ रही हैं कि नहीं? सर नहीं. अच्छा, yes, somebody said erythromycin. डॉक्टर नकीब, अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए अगर आप दोबारा एंटर हो जाएं एग्जिट होके, आई होप यू वोंट माइंड, मे बी कि स्लाइड्स आना शुरू हो जाए, आई डोंट नो. अच्छा, फिर उसके बाद जो है लेट्स सी, stop sharing and start sharing again. Can you see the slides now? Or no? बेटा स्लाइड्स नजर आ रही हैं कि नहीं? नो. जी सर, जी सर. आ रही है किसी को? ठीक है. At least somebody can see. यस. Okay, and who those people who cannot see my slides can exit and re-enter, and then they will be able to see. मुझे भी पिछले दिनों डॉक्टर नासिर साहब की स्लाइड्स नजर नहीं आ रही थी, तो I exited myself, rejoined, and then they became visible. तो somebody said very intelligent answer के जी एरिथ्रोमाइसिन. सो क्लेरिथ्रोमाइसिन, और जो उसकी बड़ी बहन है या छोटी बहन समझ लें, क्लेरिथ्रोमाइसिन क्लासिड के नाम से आती है, पाकिस्तान में क्लैरिसिड के नाम से. दैट can prolong the QTC interval as well as it is I think it's a cytochrome P450 inhibitor as well. So that will increase the level and that will prolong the QTC. तो इसलिए आपको इसके लिए बहुत मुहतात रहना पड़ेगा. फिर ciprofloxacin, fluoroquinolones as well. To some extent, they increase the QTC interval, but there is no pharmacokinetic interaction. साइक्लोक्रोम P450 पे उसका कोई खास असर नहीं होता. ये दो ग्रुप्स हैं जिसके लिए आपको बहुत मुहतात रहना पड़ेगा, स्पेशली विद क्लेरिथ्रोमाइसिन and erythromycin, macrolide antibiotics. Acha. Older people often have a number of concurrent illnesses, may require treatment with several drugs. So control over blood pressure and temperature is also reduced. Receptors become more sensitive in older people.
increased incidence and severity of adverse effects. उनमें चूंकि लेवल्स ज्यादा होते हैं, रिसेप्टर्स उनके सुपर सेंसिटिव हुए होते हैं, not only the receptors for the therapeutic effect, the receptors for the side effects are also become very sensitive. So that's why you need very very low doses. अच्छा, उसके बाद जो है reduced gut motility. ऑफन आपने देखा होगा कि एल्डरली पीपल में कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन, और कॉन्स्टिपेशन के कॉमन होने की वजह यह है कि जो गट मोटिलिटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, वो कम हो जाती है, एंड मोर चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन स्पेशली विद एंटीकोलिनर्जिक. अगर आप एंटीकोलिनर्जिक्स दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो ब्रेन में जाके ब्रेन को डैमेज करेंगी, क्योंकि ब्रेन में यू नीड एसिटाइलकोलिन फॉर brain function, and that's what you do, cholinesterase inhibitors, to increase the acetylcholine in dementia patients. And if you are giving anticholinergics, then you are inhibiting the brain function. Similarly with opioids, कि opioids से आपकी जो constipation है वो बढ़ जाएगी. तो that's why you need to be very careful and try not to give medications with anticholinergic effects, and especially pure anticholinergics don't use at all. Now, exaggerated response is seen with CNS active or psychoactive medications, so benzodiazepines, जो असर मतलब ये कि over the time usually people become tolerant to benzodiazepine, लेकिन जब ये ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो वो टॉलरेंस में भी के दोबारा से रिड्यूस हो जाएगी. और वो एक शख्स जिसने 20 साल की उम्र में 5 मिलीग्राम बीडी शुरू की डायाजेपाम, और वो 10 मिलीग्राम टीडीएस पे आ गया 60 साल की उम्र तक, एंड मुमकिन है कि आफ्टर द एज ऑफ 65 और सो उसकी जो बेंजोडाइजेपिन्स रिक्वायरमेंट है वो दोबारा कम होके 5 मिलीग्राम बीडी पे आ जाए. फिर लेस बोन मैरो फंक्शन, so more chances of OA granulocytosis. That's why we don't give clozapine, and also carbamazepine has the same effects. So क्योंकि पहले जो एल्डरली की जो हीमोग्लोबिन होती है वो 10 और 11 के दरमियान रहती है आमतौर पे, तो लेकिन जो जनरल एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें 14 to 15 के दरमियान होती है, 16 तक भी जाती है. तो दे आर ऑलरेडी एनीमिक, तो अगर आप उनको कोई ऐसी ड्रग दे देंगे तो उनका न्यूट्रोपीनिया के चांसेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे. फॉर एग्जांपल विद वेल्प्रोएक यू कैन गेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, with clozapine you can get both a granulocytosis and thrombocytopenia. Then there are more risks of metabolic syndrome due to naturally high incidence of ischemic heart disease, hypertension, diabetes, and stroke. The therapeutic response to medication can also be delayed. तो इसमें यह है कि ये जो ऊपर लिखा है ना कि ड्रग मोटिलिटी, गट मोटिलिटी कम हो जाती है, बट मोटिलिटी कम हुई है तो उतनी ही देर के लिए जो मेडिकेशन है वो ज्यादा देर के लिए गट में रहेगी, लेकिन ओवर द टाइम द फुल डोज, द फुल अमाउंट ऑफ ड्रग will be absorbed finally. So if that was the case कि जी 2 मिलीग्राम आपने दी है, पहले जब 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होती थी तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो जाती थी. अब गट मोटिलिटी और जो है वो कम हो गई है और एब्जॉर्प्शन स्लो हो गई है, बट एब्जॉर्प्शन इज स्लो डाउन नॉट डिक्रीज. तो वही जो 2 मिलीग्राम्स थी
जो कि पहले 2 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाती थी, अब वो 2 मिलीग्राम ऑफ रिस्पेरिडोन, it will be absorbed over 6 hours, but the same amount will be absorbed. So don't think that reduced absorption, it's not reduced absorption, it's slow absorption and reduced gut motility, but the same amount you will get in the end. So therefore, you don't, you still need lower doses despite these problems. And you don't need higher doses because of slow absorption and reduced gut motility. You don't need higher doses because of that reason. क्योंकि ultimately वो सारी की सारी जो दवाई है that will be get absorbed. Therapeutic response to medication can also be delayed because of mainly because of reduced gut motility and slow absorption. But ultimately therapeutic response आ जाएगा. आप बेशक थोड़ी सी डोज दे रहे हो, but be patient and wait. So older adults may take longer to respond to antidepressant due to slow absorption, reduced gut motility, etc. And absorption from the gut is reduced. Same amount will be absorbed at a slow rate. Therefore, absorption is slow but not incomplete. So it is still complete absorption. More body fat. जो psychotropic medications होती हैं, they are mainly lipophilic. Most of them are lipophilic. कि वो फैट्स में ज्यादा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं. अब जब बॉडी वाटर ही कम हो जाएगा और बॉडी फैट बढ़ जाएगा एल्डरली में, तो our brain is also mainly kind of lipid tissue, so adipose tissue ब्रेन में. तो जब ये ड्रग पहुंचे, जब बॉडी वाटर कम है, then more medication will reach the brain as it is already lipophilic. Is it possible the absorption of drug is increased? Not to my knowledge, but because of it stays longer. No, same amount. I would say same amount, not decrease, not increased. Absorption will be the stay. हाँ, अगर एक बंदा जो जनरल एडल्ट पॉपुलेशन में वो लैक्सेटिव्स इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी हो सकता है अब्जॉर्प्शन कम हो, तो उसके मुकाबले में इंक्रीज होगी. अदरवाइज अब्जॉर्प्शन विल स्टे द सेम, क्योंकि जितनी होनी है वो उतनी हो ही जाएगी अब्जॉर्प्शन. Not to my knowledge. What I have read from Maudsley prescribing guidelines is that absorption will stay more or less the same. अच्छा, more body fat. तो जब more body fat होगा तो और less water होगा, तो ज्यादा से ज्यादा medication जो है वो fat cells में जाएगी और brain में जाएगी. और स्पेशली जो लिपोफिलिक medications हैं, especially diazepam, their concentration in brain will be increased, क्योंकि फैट टिश्यू ज्यादा है और वाटर कम है, तो they will go just to brain. Low albumin. Many of the medications are drug bound, sorry, protein bound. So low protein bound drug and more free drug. जब albumin ही कम है, तो free drug बढ़ जाएगी and it will cross the blood brain barrier and it will go to the brain. फिर इसी तरह less smart hepatic function. So hepatic function is compromised, reduced hepatic clearance, reduced hepatic flow, less metabolism. तो जब मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है और हेपेटिक एक्सक्रीशन भी निस्बतन कम हो रही है, more concentration will be available and there will be longer availability of these medications because metabolism is reduced. So the drugs will not be metabolized at the same rate and more active drug will be available in the bloodstream and so to the brain. More availability of drugs plus more sensitivity of receptors leads
to increased effect. Renal function is reduced by 50%. यानी जब usually estimated GFR is more than 90 milliliter per minute, और हमारे यहाँ तो यूके आयरलैंड में जस्ट राइट के जी मोर देन 90, लेकिन पाकिस्तान की कुछ लैब्स एग्जैक्टली बताती हैं कि कितना है, तो इट गोज अप टू 126 मिलीलीटर पर मिनट. आई हैव सीन सम lab reports sent over to me by social media, and it says 126 milliliter per minute, 150 milliliter per minute. अब उसके मुकाबले में अगर 150 मिलीलीटर पर मिनट एक जनरल एडल्ट की है क्लियरेंस, और जब आप एक एल्डरली पे जाते हैं तो इट बिकम्स मोर और लेस एवरी एल्डरली पर्सन हैज 70 मिलीलीटर पर मिनट. तो जब 70 पे आ गया तो 150 की निस्बत आधा हो गया, तो रीनल क्लियरेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, एंड दैट्स अनदर reason that you need very low dose of medication, and especially if the drug is increased in urine unmetabolized as it is, then renal impairment will make a very big change. So lithium, it passes unchanged in the urine. Sulpiride and amisulpiride also, they are renally excreted without getting metabolized. So and that's, और जब अगर किडनी ही सही काम नहीं कर रहे तो फिर आपकी जो टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे. एंड फर्दर मोर लिथियम इज, पहले तो ये है कि वो एक्सक्रीट किडनीज के जरिए हो रही है, दूसरी बात ये है कि इट इज नेफ्रोटॉक्सिक एज वेल. So there are more chances of toxicity as well as adverse effects. तो उसके बाद रूल ऑफ, ये आमतौर पे मैंने खुद निकाला है, इट्स अ रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ हाफ, कि जो भी आप मेडिकेशंस दे रहे हैं, if you are not sure, if you haven't BNF ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी एट हैंड, और स्टॉल की बुक आपके हाथ में नहीं है या कोई और टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है, एंड यू नीड टू मेक क्विक डिसीजन, आप आउट पेशेंट्स में बैठे हुए हैं या क्लिनिक में बैठे हुए हैं, मरीजों का तांता बंधा हुआ है, तो अप्लाई रूल ऑफ हाफ in elderly, in hepatic impairment and renal impairment. Rule of half for starting dose and rule of half for the maximum dose. That's a rough rule. लेकिन जाहिर है कि कुछ मरीजों में आप हाफ से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, कुछ मरीजों में आप मैक्सिमम तक भी जा सकते हैं, कुछ में आपको क्वार्टर से भी ऊपर नहीं जा सकते. इट डिपेंड्स कि उनका हेपेटिक और रीनल फंक्शन कैसा है. तो रूल ऑफ हाफ मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लॉक्सिटीन की आप दे रहे हैं 20 milligrams is the starting dose in general adult population, start with 10 milligrams. If you are increasing to 60 milligrams in general adult, increase to 30 milligrams in elderly. So try not to go above 30. और अगर बहुत ही कोई there is exception कि the patient is not responding, maybe exceptionally you can go to 40, but it's not licensed, so licensed will be up to 30 mainly. We'll see what are the licensed doses. Similarly sertraline 25 पे start करके तो 100 तक चले जाएंगे, instead of 50 पे start करके 200 पे जाना. Similarly paroxetine, very similar to fluoxetine, 10 पे start करके तो आप उसको 30 पे ले जाएंगे. Citalopram you may start on 5 or 10 milligrams and you may go up to 20 milligrams or maximum 30 milligrams, and especially measuring the QTC intervals, because citalopram and escitalopram increase the QTC interval, so avoid in elderly population if you can. यही हिसाब एंटीसाइकोटिक्स का होगा. रिस्पेरिडोन 0.25 मिलीग्राम से शुरू करके तो 5 मिलीग्राम तक चले जाएंगे.
एंड फिर उसके बाद जो है, so you need to tailor according to each patient and taking into account all the medications. Dose even lower in the children and learning disability population. Drug interactions, and that's where we started our today's talk. Drug interactions हमने start की थी. Pharmacodynamic interaction, for example, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी क्यूटीसी को प्रोलॉन्ग कर रही है, और आपकी जो कुटायापिन है वो भी क्यूटीसी को प्रोलॉन्ग कर रही है. दैट्स अ फार्माकोडायनामिक. फार्माकोकाइनेटिक्स, सेम टू ड्रग्स, लेकिन क्लेरिथ्रोमाइसिन कुटायापिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रही है, फॉर एग्जांपल, इफ इट इज ट्रू, बट वी मे नीड टू डबल चेक द फॉर्मूलरी. तो अगर वो उसको बढ़ा रही है. Okay, slides are not visible. I will send you the slides and you can listen to the lecture via YouTube once again. And you can see the slides in the PowerPoint, hopefully, inshallah. So pharmacokinetic जो हैं interactions, उसमें ये है कि increased or decreased concentration of one or the other drug. तो अगर आप क्लेरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं और साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर रही है, तो कोटायापिन और एनी अदर साइकोट्रोपिक concentration will be increased, which is the medication which induces the cytochrome P450 system. Anybody? Yes, phenytoin. और एक और दवाई है जो कि साइकोट्रोपिक भी है, फेनिटोइन. एक्सेलेंट रिजवान, एक्सेलेंट. Carbamazepine and phenytoin, these two are the inducers. Fluvoxamine, I think fluvoxamine is an inhibitor, and that's why clozapine की fluoxetine is also an inhibitor. तो और fluvoxamine ज्यादा potent inhibitor है, इसीलिए या तो इसीलिए फिर जब क्लोजापिन की कंसंट्रेशन जो है वो एकदम बढ़ जाती है. और मुझे पुरानी यादें वापस आ गई हैं, जब मैं आई थिंक इट वाज 2006 2007, तो मैं सर्विसेज में वार्ड में गया मिलने के लिए यहाँ से आयरलैंड से. तो डॉक्टर इस्माइल साहब और अल्लाह बख्शे डॉक्टर शाहिद हमीद वारिस साहब ये बैठे हुए हैं और एकेडमिक गुफ्तगू चल रही है. इतना अच्छा था जो सर्विसेज का माहौल, इतना एकेडमिक था शुरू से. और इसीलिए सर्विसेज ने, जिस तरह आरएमसी ने हीरे पैदा किए हैं, उसी तरह सर्विसेज ने भी हीरे पैदा किए हैं, और इसी तरह जिन्ना ने भी. तो बेसिकली वहां पे गुफ्तगू क्या चल रही थी कि डॉक्टर शाहिद हमीद वारिस और डॉक्टर इस्माइल ये फरमा रहे थे कि जी क्लोजापिन और फ्लूवॉक्सामिन इकट्ठे मत दो, क्योंकि इनके इंटरेक्शन से क्लोजापिन टॉक्सिसिटी कैन बी कॉज्ड. एंड दैट वाज एन इंफॉर्मेशन फॉर मी, एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड ऑफ नॉलेज. तो जो डॉक्टर शाहिद हमीद वारिस, वो तो चलती फिरती ऑक्सफोर्ड थे, और अल्लाह ताला उनकी गरीक रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए. सो नाइस मैन. तो that's one of the interactions. Drug interactions of lithium. Drug interactions. No, SSRIs together. No. Sometimes SSRI and SNRI can be given together, or SSRI and tricyclics, but it is not ideal. It is not ideal. We sometimes give to increase the dose of clozapine. आप अनम्यूट करके बताएं मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर ये आप क्लोज़ापिन की बात कर रहे थे, तो सर कभी कभार जब क्लोज़ापिन की डोज हम कम दे रहे होते हैं या अफोर्डेबिलिटी कम होती है, तो फ्लूवोक्सामिन के साथ हम दे देते हैं, तो उससे फिर उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है. हाँ, मतलब फॉर दैट पर्पस. हाँ, क्लोज़ापिन के साथ तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये 2 SSRIs इकट्ठी नहीं करनी आपने.
कोशिश करें कि ना जी करें। जी फिर वो अगर आप फ्लूवॉक्सामीन दे रहे हैं तो फिर आपने अगर साथ कोई दूसरी एंटी डिप्रेसेंट देनी ही है तो चूज विद सम डिफरेंट इंटरेक्शन, मेटाजोपीन और ट्राजोडोन एक्सेट्रा, लेकिन दो एसएसआरआईज को कंबाइन ना करें। फिर आप उसको जो लो डोज क्लोजापीन और फ्लूवॉक्सामीन की रिक्वायर्ड डोज यू कैन कंबाइन। फिर आपको दोनों उसमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी कि आपको फ्लूवॉक्सामीन की डोज को भी जितना कम से कम हो सकता है रखना पड़ेगा और क्लोजापीन को भी कम से कम रखना पड़ेगा। एंड मे बी मॉनिटरिंग द लेवल्स ऑफ क्लोजापीन। मुझे कोई बताए अनम्यूट करके कि क्या पाकिस्तान में क्लोजापीन लेवल्स होते हैं कि नहीं होते? और द लेवल्स सर चेक और हमारे नॉट? नहीं सर, लेवल्स तो नहीं होते यहाँ पे, बस हम सीबीसी देखते रहते हैं, सेटल चल ठीक रहा है तो डोज बढ़ाएंगे, दैट्स इट। ठीक ठीक है अच्छा अच्छा सर, एक सवाल था ये कि जी। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो लाइक लाइक हमारे वार्ड में एक एडमिट हैं, उनको लाइक 400 मिलीग्राम चल रही है क्लोजापिन, और साथ में फ्लॉक्सामिन 150 मिलीग्राम चल रही है, बिकॉज उनमें ऑब्सेशंस बड़े प्रोमिनेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। ठीक ठीक तो ठीक। क्या स्किज़ो ऑब्सेसिव जो है लाइक इस तरह की आ रही है पिक्चर? तो सर ने पूछा भी था एक सवाल कि क्या अदर रीजन होता है कि आप फ्लूऑक्सामिन दें, तो समझ नहीं आई थी बात कि क्यों, मतलब लाइक सिर्फ ऑब्सेशंस के लिए दे रहे हैं या ऑगमेंटेशन के लिए, क्या? बोथ बोथ पर्पजेस। लेकिन आपको बहरहाल उसमें अब चूंकि आप लेवल्स नहीं मॉनिटर कर सकते तो आपको उसकी जो है वो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस और उसकी ईईजी एक दफ़ा करवा लें कि उसमें कोई ईईजी चेंजेस तो नहीं आ रही, कोई सब क्लिनिकल सीजर्स तो नहीं आ रहे ईईजी में, उसका ये ज़रूर चेक करवा लें, दैट विल बी एन इंडिकेटर। अगर और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही, ये 3-4 चीज़ें देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी क्लोजापीन की डोज ठीक जा रही है। और आप जाहिर है कि 400 है तो उससे ऊपर आपका जाना बहुत मुश्किल होगा फ्लूवॉक्सामीन के साथ। बेसिकली मैंने ये इसलिए पूछा लेवल्स का क्योंकि लेवल्स यहाँ भी हर जगह नहीं होते। पूरे इंग्लैंड में, बल्कि पूरे यूके में, आई थिंक देयर इज ओनली वन लेबोरेटरी अभी तक मेरे इल्म में, एक ही है, किंग्स कॉलेज लंदन में एक लेबोरेटरी है जहाँ पे क्लोजापीन के लेवल्स होते हैं, और पूरे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से भी लेवल्स वहीं पे ब्लड के स्पेसिमेंस लाए जाते हैं ब्लड लेवल्स चेक करने के लिए, और इसी तरह थ्रू आउट द यूके वहीं से सारे सैंपल्स जाते हैं किंग्स कॉलेज लंदन में। सर तो मैं डॉक्टर रिजवान की बात का जवाब देना चाह रही थी। जी तो जी डॉक्टर रिजवान वो सेम रीजन है जो मैंने अभी बताया कि क्लोज़ापीन की डोज इंक्रीज करने के लिए भी फ्लूवॉक्सामिन साथ दिया जाता है। मतलब चीजों इफेक्टिव उसके साथ, जैसे आप सेकंड पूछ रहे थे कि सर आपसे पूछ रहे थे, तो ये सेकंड है कि हम अक्सर पाकिस्तान में इस तरह से करते हैं। बिल्कुल सही हो गया, बोथ रीजंस। और ऑब्सेशंस के लिए भी दे सकते हैं क्योंकि बेसिकली जब ये स्किज़ोफ्रेनिया, और इसमें बेसल गैंग्लिया का काफी रोल है स्किज़ोफ्रेनिया में भी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में भी, और दैट्स व्हाई यू सी अ कोमॉर्बिडिटी ऑफ ऑब्सेशंस एंड साइकोसिस, एंड समटाइम्स यू कांट इवन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो ऐसे मौके पे आपको दोनों देनी पड़ती हैं। फ्लूवॉक्सामीन एक ऐसी दवाई है जो कि जब मैंने आखिरी दफ़ा दी थी दैट वाज इन 2002 इन पाकिस्तान, उसके बाद यूरोप में आके कभी नहीं दी मैंने, बट इट्स अ वेरी गुड मेडिकेशन। इज इट वेरी सेडेटिव एज वेल रिजवान, फ्लूवॉक्सामीन? आप बताएं। सर नो अच्छा सर, इतनी सेंसिटिव नहीं। सर, काफ़ी सेडेटिव होती है, मतलब जो एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा अच्छा। क्लिनिकल क्योंकि में देखा है। मैंने तो सर्विसेज इंस्टीट्यूट में एक या दो मरीजों को चलाई होगी, वो भी पहले से जो मेरे एमओज कॉलीग्स दे रहे थे उनको चलाई मैंने, इसलिए आई डोंट नो मच। ठीक है, कोई भी आ, दवाई जो सेडेटिव हो तो उसकी रात की डोज ज्यादा रख सकते हैं, सुबह की डोज कम रख सकते हैं, सही। बिकॉज अच्छा फ्लूवॉक्सामीन इज द ओनली एसएसआरआई यू हैव टू गिव ट्वाइस अ डे, बाकी सारी वंस डेली है। सही। सर ये न्यूरो फार्माकोजीनोमिक्स जो है, लाइक वो होते हैं वहाँ पर? हमारे यहाँ पे 2 पेशेंट्स के करवाए थे टर्की से, लाइक पता नहीं वो सलाइवा लेते हैं उसके बाद देन दे टेल यू कि विच एंटी साइकोटिक्स विल सूट दिस पेशेंट, तो ऐसा
कुछ है सर ये मतलब like नो, ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस, मे बी इन ठीक अमेरिका करते हो। यहाँ पे क्योंकि सारे जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट ने उठाने होते हैं, तो गवर्नमेंट ट्राइज इट्स बेस्ट कि जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो की जाए और गैर ज़रूरी टेस्ट ना किए जाए। ये अच्छी चीज़ है। इट इज़ व्हेन आई अटेंडेड द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी लेक्चर्स, दे टोल्ड अस के जी मेटाबॉलिक, उनका मेटाबॉलिक रेट है उसका पता चल जाए कि बंदा जो है वो स्लो मेटाबोलाइजर है या फास्ट मेटाबोलाइजर है। अगर किसी तरीके से ये पता चल जाए, उनकी साइटोक्रोम P450 का स्ट्रक्चर पता चल जाए किसी तरीके से, तो देन यू कैन जज कि उनको किस दवाई की डोज ज्यादा देनी है। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम P450 के जो सब कंपोनेंट्स हैं 2D4 और 3A4 समथिंग लाइक दैट, तो आपको पता चल जाएगा 1A2 साइट 1A2, तो आपको पता चल जाएगा कि जी उसमें कौन से जो हैं वो कंपोनेंट साइटोक्रोम P450 में ज़्यादा हैं और कौन से ज़्यादा फंक्शनल हैं और आपको कौन सी दवाई देनी है। मे बी दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट इन यूरोप सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए होता है। तो मे बी के किंग्स कॉलेज वगैरह में रिसर्चर्स करवाते हो, बट इन रूटीन दे आर नॉट डन। एरिथ्रोमाइसिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और ड्रग इंटरैक्शंस चेकर, ये drugs.com इसकी ऐप भी है, drugs.com का इंटरैक्शन चेकर, और उसका भी प्रोफेशनल वर्जन। इफ यू गो विद द प्रोफेशनल वर्जन दैट्स मच बेटर। लेकिन और अगर आप दूसरे पे जाते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट है वो पेशेंट के लिए खुलता है कि यू आर टेकिंग दिस मेडिकेशन एंड यू आर आल्सो टेकिंग दिस मेडिकेशन, इफ यू कंबाइन द टू यू विल फील मोर स्लीपी, दैट्स फाइन। और अगर आप उसी को प्रोफेशनल वर्जन उसके आप उस पर क्लिक करें तो इट विल टेल यू कि जी these two drugs lead to for example QTC prolongation, or one inhibits the metabolism of other and increases the concentration. So drugs.com का interaction checker है, that is I really like. BNF, unfortunately BNF किसी भी वेबसाइट पे पाकिस्तान में नहीं खुलती, but you have, if you have the PDF or if you have the original book, then you can check in the BNF कि उसमें interactions क्या हैं। फिर इसके अलावा medscape.com का जो interaction checker है, that is also very good, although it's relatively a bit brief than drugs.com, but it is good, and they're all three sources are quite authentic. अच्छा, उसके बाद जो है वो ड्रग इंटरेक्शंस को देख लो। पर्ल्स ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द मॉडस्ली प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस, तो यूज ड्रग्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। नंबर 2, अवॉइड इफ ऑल पॉसिबल ड्रग्स दैट ब्लॉक अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स। अल्फा 1 को अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं तो क्या रिस्क है, क्या हो जाएगा अल्फा 1 ब्लॉकेट से? फॉर एग्जाम्पल आप प्रोथायोडिन डोथायोपिन दे रहे हैं, नहीं, urinary retention is anticholinergic. Anyone else? Alpha 1 blockade से क्या होगा? Benign prostate hyperplasia? I don't know. Maybe, लेकिन और postural hypertension. सर ड्रॉप होगा सर। हाँ जी, बिल्कुल, लो बीपी, पोस्टरल हाइपोटेंशन, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो आप ऐसी दवाइयां कोशिश करें कि ना दें जिनमें अल्फा 1 जो कि बीपी को कम करती हो, और अगर आपने ऐसी दवाई देनी है तो फिर आपको हो सकता है उनकी एंटी हाइपरटेंसिव डोज को रिड्यूस करना पड़े। और एक और बात जो मैंने देखी है कि अक्सर मेरे बाज मरीजों की एंटी हाइपरटेंसिव बाजों की छूट गई क्योंकि वो साइकोट्रॉपिक्स पे थे। और ऐसा भी हुआ कि एक मरीज जो है वो
दाखिल हुआ, patient was, let's say, on 2 milligrams of risperidone and uh, let's say कि इसमें telmisartan for example है एंटी हाइपरटेंसिव, वो 40 मिलीग्राम्स पे थी। अब वो उसने 2 महीने से दोनों स्टॉप की हुई हैं, 2 महीने के बाद जाके वो एडमिट होती है, और जो एडमिटिंग डॉक्टर है, जो ड्यूटी डॉक्टर है उस दिन का, वो जूं की तू दोनों दवाइयां चला देता है। व्हाट इज द रिस्क? उसने दोनों नहीं ले रही थी, वो ना एंटी हाइपरटेंसिव ले रही थी और ना वो रिस्पेरिडोन ले रही थी, तो क्या होगा इसमें? एनीवन अनम्यूट? सर सॉरी, एक दफा सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखें, एक जी मरीज सर। थी जिसको आपने रिस्पेरिडोन 2 मिलीग्राम दी हुई थी और सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल, और उसका जो जीपी या कंसल्टेंट फिजिशियन था उसने साथ उसको दी हुई थी टेलमिसार्टन या कोई और कोवर्सिल, कुछ भी। तो आपने वो जो टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम चल रही थी, विच इज अ रिलेटिवली हायर डोज, तो आप 2 महीने से वो नहीं ले रही थी, आपने कहा जी नॉन कंप्लायंट है, और आपका जो ड्यूटी डॉक्टर था जो वार्ड में, उसने दोनों दवाइयां इकट्ठी शुरू करवा दी, 2 मिलीग्राम प्लस 40 मिलीग्राम, तो उसका ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा। तो what I will do in under these situations is कि मैं उसकी जो रिस्पेरिडोन है 0.5 मिलीग्राम्स उसको शुरू करवाऊंगा, और जो टेलमिसार्टन है उसको भी मैं होल्ड रखूंगा। फिर जब मैं देखूंगा कि उसका जो बीपी है वो अभी तक 150 160 जा रहा है, तब मैं टेलमिसार्टन भी उसकी 10 और 20 मिलीग्राम्स पे लो डोज में शुरू करवा दूंगा उसकी, बिकॉज शी वॉज नॉट टेकिंग इट। और अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो ही नहीं रहा, देन यू डोंट नीड एंटी हाइपरटेंसिव, तब आप रिस्पेरिडोन के साथ ही उसका गुजारा चलाएं लोएस्ट डोज के साथ। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, ऑफ कोर्स यूरिनरी रिटेंशन, ब्रेन का जो फंक्शन है वो इससे इंपेयर होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। सेडेटिव इफेक्ट्स जो हैं, तो जो उसका जो स्कोर है ना, एंटीकोलिनर्जिक स्कोर, वो पहले आप मेजर कर लिया करें, जो कि है मेड, आई थिंक इट वाज मेड चेक, आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि medicheck.com, दैट्स फ्रॉम किंग्स कॉलेज मॉडस्ली इंस्टीट्यूट के वो वेबसाइट है, और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये स्कोर बताती हैं, तो वो आप चेक कर लें कि किस ड्रग का कितने एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं, और give the medication with least anticholinergic side effects. For example, maybe के paroxetine के ज्यादा हो, sertraline के कम हो, तो आप then you will give sertraline instead of paroxetine. और वेरी सेडेटिव जो हैं वो भी दवाइयां आप कोशिश करेंगे कि एल्डरली में ना दें, unless they are very agitated, then you'll have to give. लॉन्ग हाफ लाइफ वाली दवाई कोशिश करें ना दें, शॉर्ट हाफ लाइफ वाली दें। सेम विद हेपेटिक फंक्शन, हेपेटिक इम्पेयरमेंट के अगर आप उसमें वो देते हैं ऑक्साजिपैम अगर देते हैं, तो दैट्स एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडायजेपिन। तो इसी तरह आप अगर आप लोराजिपैम से काम चला सकते हैं, तो देन नो नीड ऑफ गिविंग डायazepam और क्लोनाजिपैम इन एल्डरली। लोराजिपैम नहीं है तो फिर ब्रोमाजिपैम तो है। हमारी किसी कॉलीग ने बताया कि किसी मरीज का बता रही थी कि पेशेंट पाकिस्तान गई और they gave her some benzodiazepines which is not available in the UK. मैंने झट से कहा ब्रोमाजिपैम, कहती यस। तो आपके पास वो ऑप्शन है। अनफॉर्चुनेटली ब्रोमाजिपैम यू कांट गिव इंट्रामस्कुलर, लोराजिपैम का ये था कि इंट्रामस्कुलर भी दी जा सकती थी, तो उसके लिए भी आप फिर प्रोमेथाजीन यूज कर सकते हैं, बट अगेन प्रोमेथाजीन एंटीहिस्टामीन इफेक्ट प्लस एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, तो ये सारे आपको रिस्क्स देखने पड़ते हैं। तो टेंजिल के नाम से भी नहीं आती है पाकिस्तान में लोराजिपैम, पहले तो टेंजिल के नाम से आती थी। Does it come or not? सर लोराजिपम अवेलेबल है सर इजीली, एरिगान के नाम से है, एटिवान के नाम से है, लोराम के नाम से है सर, 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम में के लिए।
ठीक है। और लोराज़ेपैम की जो मोस्ट ऑफ द preparations हैं, टू माय नॉलेज, दे कैन बी इजीली सबलिंगुअली एब्जॉर्ब, क्योंकि उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है लोराज़ेपैम, वो सबलिंगुअली एब्जॉर्ब हो जाता है। और 81 वालों ने इस चीज को कभी भी इसको प्रमोट नहीं किया, बट द टेंजिल वाज द फर्स्ट मेडिकेशन जिन्होंने ये बात बताई, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसी एक प्रेपरेशन बनाई है टेंजिल के नाम से, विच इज सबलिंगुअल। तो एक्चुअली इट्स नॉट ओनली टेंजिल, कोई भी आप लोराज़ेपैम देंगे दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड सबलिंगुअली, बट थैंक्स टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेंजिल जिन्होंने हमें ये अवेयरनेस दी। तो अगेन अगर आप जनरल एडल्ट में तो आप दे सकते हैं, एल्डरली में जरा आपको एहतियात के साथ देनी पड़ेगी सबलिंगुअल। ट्राई नॉट टू, इफ यू कैन try not to treat the adverse effects of one drug with another drug, find a better tolerated alternative। अगर आप, बहुत सारे मेरे जो पेशेंट्स हैं उनकी क्लोज़ापीन आके छूट जाती है, क्योंकि क्लोज़ापीन के लिए आपको फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ देना पड़ेगा, फिर उनकी डायबिटीज के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो एल्डरली में होते ही ज्यादा नेगेटिव सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। तो आई टेंड टू के मेरे जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स हो जाएं उनमें क्लोज़ापीन छुड़वा के तो एरिपिप्राजोल पे डाल देता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि some drugs still require the full adult dose according to the Maudsley। तो ये जरूरी नहीं है रूल ऑफ हाफ के आपने लाजमन हाफ पे जाना है। हो सकता है आपको बाज मरीजों में सर्ट्रलिन की डोज 200 तक बढ़ानी पड़ जाए, बट दोज विल बी एक्सेप्शंस। ठीक है, सो स्टार्ट लो, इंक्रीज स्लो, डू नॉट अंडर ट्रीट। जिस तरह प्रोफेसर नासिर साहब कहते हैं कि थेराप्यूटिक डोज तो दो कम से कम, लेकिन यहाँ पे एल्डरली में थेराप्यूटिक डोज ही बहुत कम होगी, तब भी आपको मिनिमम इफेक्टिव डोज तो देनी पड़ेगी। कीप थेरेपी सिंपल, तो बजाय इसके कि आप प्रोसाइक्लिडिन भी साथ दे रहे हैं और हेलोपेरिडोल आप 10 मिलीग्राम दे रहे हैं, व्हाई नॉट गिव हेलोपेरिडोल 2 milligrams and not to use procyclidine, or switch to risperidone or quetiapine, and you don't have to give procyclidine in that case। ठीक है, वंस डेली एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी प्रोफेसर नासिर साहब फरमाते हैं कि जब आप एरिपिप्राजोल 10 मिलीग्राम एक दफा दे सकते हैं, रिस्पेरिडोन भी अगर आप एक दफा दे सकते हैं, ऑल्दो बोथ आर ऑल राइट फॉर रिस्पेरिडोन, आप 1 मिलीग्राम बीडीबी दे सकते हैं, 2 मिलीग्राम नॉक्टे भी, लेकिन अगर आप 2 मिलीग्राम एट नाइट दे देते हैं, दैट्स बेटर देन डिवाइडिंग द डोज, क्योंकि वो लॉन्गर एक्टिंग है। तो जो लॉन्गर एक्टिंग है वंस डेली रखें, स्पेशली इन एल्डरली। कोवर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पूरा एक चैप्टर था, उस चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया है, सिर्फ एक पैराग्राफ है कि अगर पेशेंट लैक्स कैपेसिटी, अगर तो वो उसको डिमेंशिया है फॉर एग्जांपल, या स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज्यादा है, उसको समझ ही नहीं है मेडिकेशन की बिल्कुल, तो फिर वो अगर उसमें कैपेसिटी टू कंसेंट और रिफ्यूज है ही नहीं, तो इन सच केसेस यू कैन कोवर्टली एडमिनिस्टर इन फूड और ड्रिंक, लेकिन इसके लिए आपको फैमिली को एतमाद में लेना पड़ेगा और अपने बाकी साइकियाट्रिस्ट कॉलीग्स को एतमाद में लेना पड़ेगा, अपने डिपार्टमेंट के साइकियाट्रिस्ट को। वंस you take people into confidence, then you can start the covert administration। तो अगर आप लोग क्लिनिक में अपने आउट पेशेंट्स में बैठे हैं तो अपने कंसल्टेंट को एक दफा बता दें कि मैं कवर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मशवरा दे रहा हूं, जस्ट टू कवर योरसेल्फ। अगर आप आउट पेशेंट्स में और इन पेशेंट्स में हैं तो देन डिस्कस इन द वार्ड राउंड एटलीस्ट। AEC scores, medicheck.com, I already told you, you can click on the link medicheck.com और इसमें आप देख सकते हैं। अगर तो स्कोर 0 है तो उसकी एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। स्कोर उसका 1 है तब भी गुजारा चल जाएगा, 2 और 3 है तो फिर ट्राई नॉट टू यूज दोज मेडिकेशन। सो प्रोसाइक्लिडिन का कितना होगा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट फ्रॉम 0 to 3? एनी गेस? 3 होगा। ठीक है, ओlanzapine का कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली? एनी गेस? किसका सर? ओlanzapine 3 ओलेंजापिन का सर 1 है सर, 1 है ओलेंजापिन, 1 या 3। Three. I think when what I checked it was 2,
तो 1 या 2 है जी सर। हाँ, मेरा ख्याल है ये 2 था, तो जस्ट अ गेस, यू नो। सो आप उसका वो medicheck.com से या किसी भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स की उससे आप देख लेंगे, और जो 2 और 3 वाली दवाइयां हैं उसको अवॉइड करें। इस वेबसाइट पे जाएं, 1 मिनट लगेगा, उस दवाई का नाम डालें, देखेंगे उसका 0, 2 और 3 आ रहा है। आई थिंक लेट्स ओपन इट एनीवे, ताकि आपकी एक सर वो बुक में सर सारा ये दिए मॉडल की जो हमारे पास बुक है ना, उसमें सर जी दिए हुए हैं सब कुछ। दिए हुए हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल मॉडलिंग में बिल्कुल दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं। तो स्टार्ट असेसमेंट फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम ओलेंजापिन का 2 लिखा हुआ आ रहा है, जो मैंने अभी मेडिचेक खोला है उसमें ओलेंजापिन डाला तो ओलेंजापिन 2 लिखा हुआ आ रहा है। आई थिंक लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। अपनी जो स्क्रीन है उसको मैं दोबारा शेयर करता हूँ। शेयर स्क्रीन, स्विच स्क्रीन व्यू, और मेडिचेक। अच्छा, आप लोगों को अब कुछ नजर आ रहा है मेरे गूगल क्रोम का कुछ? नो सर। हाँ ठीक है ना। अटोर्वास्टैटिन 0, हेलोपेरिडोल 0, मेटफॉर्मिन -1, बिल्कुल ही नहीं है। सर प्रोसाइक्लोडिन नहीं आ 3, रहा। रिस्पेरिडोन 0, ओलेंजापिन 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने सर्च बार में इसको मेडिचेक में जाके तो हमने इसको डाला, और जब आप इसका ये देखेंगे तो ये नीचे क्यूमुलेटिव स्कोर आ जाएगा, और क्यूमुलेटिव स्कोर प्रोसाइक्लोडिन और ओलेंजापिन, और जो 1 किसका था, मेटफॉर्मिन का, आई थिंक -1 या 1 बता रहे हैं। एनीवे लेट्स से इट्स 1, तो 3 + 2 + 1 टोटल एसी स्कोर 5 तक चला जाएगा उसका। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट इट। और अब मैं इसका जो व्यू है वो दोबारा चेंज कर देता हूँ। स्विच विंडो एंड शेयर स्क्रीन, स्विच स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट। नाउ यू कैन सी माय स्लाइड्स। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें ये है कि आगे टेबल्स आ जाते हैं, और विल क्विकली गो थ्रू। तो एमिसल्प्राइड की डोज जो है वो 25 स्टार्टिंग डोज होगी, और जो मैक्सिमम डोज होगी, अगर वो आप 800 तक जाते हैं जनरल एडल्ट में, और 1200 तक जाते हैं, तो यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि 200 से ऊपर ना जाएं। ज्यादा ही हो गया तो 400 तक चले गए, कोशिश करें इससे कम रहे। अरेपिप्राजोल अगेन, लुक एट द रूल ऑफ हाफ। तो आप नॉर्मली 10 पे शुरू करवाते हैं, लेकिन ये है बेसिकली बीपीएसडी, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। तो इसमें दे आर यूजुअली एल्डरली पॉपुलेशन है और डिमेंशिया के साथ हैं, तो उसमें ये वहां से मैंने ये टेबल लिया है। 5 मिलीग्राम से शुरू करवानी, 15 तक जाना है अरेपिप्राजोल। हेलोपेरिडोल नॉट रिकमेंडेड इन ओल्डर पीपल विद डिमेंशिया एक्सेप्ट इन डिलीरियम। अगर डिलीरियम होगा तो देना है, वरना नहीं। ओलेंजापिन देनी है तो 2.5 to 10, लेकिन ओलेंजापिन से क्या रिस्क होगा डिमेंशिया पेशेंट्स में, कोई बताएगा मुझे? What will be the risk of olanzapine to be given in dementia patients? एंटाइकोलिनर्जिक है तो सर कॉग्निशन और उसकी खराब हो जाएगी, तो दैट्स बिल्कुल व्हाई बिल्कुल, साइको। दैट्स वन ऑफ द रिस्क। और मेन रिस्क इसका क्या है, इसके अलावा कोई और रिस्क जहन में आता है? With all सेडेशन ज्यादा हो anti- सकती है। दोबारा बताइए। रिस्क ऑफ फॉल सर। सेडेशन और सेडेशन, फॉल्स हो सकते हैं फिर। फॉल्स भी हो सकती है। सबसे बड़ा जो है वो रिस्क ऑफ स्ट्रोक, कॉन्स्टिपेशन। risk of stroke with all antipsychotics in elderly and with आई वी वर dementia। नॉट अवेयर ऑफ दिस। हाँ, ये बात याद रखना, डिमेंशिया पॉपुलेशन में एंटीसाइकोटिक्स कोशिश करें ना दें। अब ये बीपीएसडी के लिए और भी टेबल्स में और भी दवाइयां होंगी, कोशिश करें कि आप एंटीकोलिनर्जिक, आप वो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स दे दें, मेमेंटीन दे दें, तो कुछ और दे दें, लेकिन बेंजोस को अवॉइड करें, और स्पेशली एंटीसाइकोटिक्स को अवॉइड करें। अगर आप
प्रीगैबलिन दे सकते हैं या ट्रेजोडोन दे सकते हैं थोड़ी सी, तो वो दे दें। लेकिन जो ये एंटीसाइकोटिक्स हैं ट्राई टू अवॉइड। लेकिन अगर आपने देनी है तो फिर ये कि गिव इट फॉर अ फ्यू वीक्स अंटिल द स्ट्रेस पीरियड इज रिजॉल्व। जब जैसे ही उनका स्ट्रेस कम हुआ है साथ ही आप ओलेंजापिन भी स्टॉप कर दें, वरना उनमें स्ट्रोक ना हो जाए। कुटायापिन 12.5 मिलीग्राम्स पे आपने शुरू करना है और 300 मिलीग्राम्स पर डे तक जाना है। नॉर्मली आप 800 पे जाते हैं, यहाँ पे आपने यानी 600 का भी आधा, और आपने 300 से नहीं बढ़ानी एल्डरली में। रिस्पेरिडोन नॉर्मली आप 8 मिलीग्राम्स तक जाते हैं, लेकिन अगर बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया बीपीएसटी के लिए दे रहे हैं 0.25 और इवन 0.125 के साथ सम पेशेंट्स में शुरू करवानी है। और यू कैन गो अप टू 2 मिलीग्राम्स पर डे, बिकॉज आपने बिहेवियरल सिम्टम्स को आप ट्रीट कर रहे हैं, नॉट ट्रीटिंग मेनिया, यू नॉट ट्रीटिंग साइकोसिस, तो कम से कम रखें इसका। सिमिलरली एंटी डिप्रेसेंट्स एगोमेलेटिन है तो 25 मिलीग्राम्स नॉक्टे। यूजुअल जो मेंटेनेंस डोज है इट्स द सेम एज फॉर जनरल पॉपुलेशन 50 मिलीग्राम्स में आपको इतनी रिडक्शन नहीं चाहिए होती। सिटालोप्रैम 10 पे शुरू करेंगे और 20 तक जाएंगे। नॉर्मली आप 40 तक जा सकते हैं। क्लोमेप्रामीन नॉर्मली आप 225 तक जा सकते हैं, इसमें आप 1/3 इसकी रखेंगे, आप 75 पे रखेंगे तो आप वो 225 तक से भी उसका भी आप 1/3 रखेंगे, बिकॉज क्लोमेप्रामीन का एंटीकोलिनर्जिक जो लोड है वो भी बहुत ज्यादा है, तो आप हाफ से भी बहुत कम रख रहे हैं। डेसवेनलाफैक्सिन आई हैव नेवर यूज्ड, लेकिन 400 तक जा सकते हैं। डुलॉक्सिटीन 30 मिलीग्राम से शुरू करके 60 तक जाएंगे, 120 पे बहुत रेयरली जाएंगे और ब्लड प्रेशर को मेजर करते हुए। एसिटेलोप्रैम you'll start with 5 milligrams, 10 तक जाएंगे। फ्लुऑक्सिटीन 20 से शुरू, I would start with 10, I mean on the safer side, तो although इन्होंने starting dose 20 लिखी हुई है, लेकिन I will start at 10 and I will keep at 10, और हो सकता है उसको 10 से ही आराम आ जाए। लेकिन जब मैक्सिमम जाएंगे तो 40 पे। 60 milligrams is very rare, it can be used but very rare। डिप्रेशन में लोफेप्रामीन, अगर आपने लोफेप्रामीन आई थिंक पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल होती, and in UK and Ireland it is becoming quite rare, but this is the equivalent of sertraline in tricyclics। जिस तरह sertraline होती है इस्तेमाल लोफेप्रामीन गामानिल पाकिस्तान में, नेवर हर्ड, ओके ठीक है। तो लोफेप्रामीन जो है वो कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मच सेफ। जिस तरह सर्ट्रालीन एसएसआरआईज में सेफेस्ट है, इस तरह ट्राइसाइक्लिक्स में सबसे कम एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स जो हैं वो लोफेप्रामीन के होंगे। अगर आप उसमें मेडिचेक में जाके तो आप बाद में देख लें, लोफेप्रामीन और एमिट्रिप्टालिन को कंपेयर करें, आपको पता चलेगा क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन इसकी कम होगी। तो दैट्स द सेफेस्ट ट्राइसाइक्लिक। लेकिन अब ये जब 2010 से पहले इट वाज क्वाइट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, अब बहुत कम हो गई है ये एल्डरली में, और किसी भी पॉपुलेशन में लोफेप्रामीन अब बहुत कम दी जाती है। मेटाजापीन अगेन स्टार्ट विद 7.5, go up to 30, sometimes exceptionally go up to 45। ठीक है जी। सर्ट्रालीन 25 to 50, मैक्सिमम 100, occasionally 150 तक चले जाएंगे। इसी तरह ट्रेजोडोन जो है वो आप 25 से शुरू करके 100, 200 और 300 तक चले जाएंगे, लेकिन आप जनरल एडल्ट पॉपुलेशन में 600 तक जा सकते हैं। वेनलाफैक्सिन 37.5 से आप शुरू करेंगे और 150 तक जाएंगे, कोशिश करेंगे उससे ऊपर ना जाएं। वर्टिऑक्सिटीन इसी तरह 5 से 10 और 20 तक जाएंगे। एमिसल्पराइड 50 से शुरू करके 200 तक जाएंगे और समटाइम्स 400 तक मैक्सिमम, लेकिन कॉशन आपको करनी पड़ेगी। लेट लाइफ साइकोसिस में आपको हो सकता है 200 मिलीग्राम से ही काम चल जाए, लेकिन अगर क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया है तो आपको हो सकता है 400 तक जाना पड़े। एरिपिप्राजोल 5
to 15, maximum 20. फिर इसी तरह क्लोजापिन अगर आप दे रहे हैं तो नॉर्मली आप 12.5 से शुरू करवाते हैं, लेकिन एल्डरली में अगर आपने शुरू करवानी ही है क्लोजापिन, पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट से आप मशवरा करेंगे, क्योंकि इट्स पार्किंसंस रिलेटेड साइकोसिस में आप दे रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर इन्वॉल्व करें। अदरवाइज ट्राई नॉट टू गिव। अगर देनी ही है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया और पार्किंसन साइकोसिस में 6.25 से शुरू करें, और 50 milligrams daily should be quite sufficient. कहाँ आप 900 यूज कर रहे थे और कहाँ आपको ओनली 50 milligrams will be sufficient in elderly. फिर उसके बाद जी लोराजिडोन है, फिर ओलैंजापीन है, 2.5 से शुरू करके रूल ऑफ हाफ पे जाएं तो 10, थोड़ा सा आप और बढ़ा दें तो 15 पे चले जाएंगे। कोटायापीन 12.5, मे बी 300, रिस्पेराडोन 4 milligrams, हेलोपेरिडोल 0.25 से शुरू करके, 0.5 भी नहीं, 0.25 से शुरू करके तो 3.5 तक जाएंगे, मैक्सिमम 10 milligrams पर डे, लेकिन विद कॉशन। और अगर आपने आईएम देना है तो आप जाहिर है कि वो 2.5 की 2 दफा लगा देंगे, वो भी आप 2.5 एक दफा लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो एक्सट्रीमली लो डोजेस। फिर इसके बाद फ्लूपेंटिक्सोल ओरल जो है, या अगर कोई डेपो है तो बेसिकली डेपो आप 40 milligrams एवरी 2 weeks, स्टार्ट डोज 5 milligram टेस्ट डोज होगी इसकी। फ्लूफेनाजिन अगेन इट्स बिकमिंग ऑब्सोलेट, लेकिन अब आप शुरू करेंगे 6.25। हेलोपेरिडोल का अगर डेपो होगा तो 12.5 से शुरू करेंगे इसका टेस्ट डोज, और 50 milligrams पर मंथ जाएंगे। जूक्लोपेंटिक्सोल इसी तरह। फिर उसके बाद एरिपिप्राजोल का डेपो भी बहुत कम, यहाँ पाकिस्तान में डेपो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूजुअली 400 milligrams इज द डोज। तो अगर आपने पहले इसकी टेस्ट डोज देनी है तो वो आप 100 देते हैं पेशेंट में, 50 और 100, और फिर उसके बाद आप फुल दे देते हैं। यहाँ पे आपने 25 milligrams की टेस्ट डोज देनी है और 100 milligram से ऊपर जाना ही नहीं है, यानी 1/4 आपने एक्चुअली एरिपिप्राजोल इट्स नॉट रिटन, लेकिन पेलिपेरिडोन की बात कर रहा हूँ। पेलिपेरिडोन आपने 25 से शुरू करके और 100 तक जाना है। नॉर्मली इन जनरल एडल्ट पॉपुलेशन यू कैन गो अप टू 150, लेकिन आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है कि 75 से ऊपर ना जाए, रूल ऑफ हाफ। ठीक है जी। पेलिपेरिडोन परमिटेड 3 monthly इंजेक्शन भी आता है, बट वी डोंट यूज इट इन द यूके, मैंने आज तक यूज नहीं किया, लेकिन उसकी भी डोजेस वैसे ही होंगी। फिर मूड स्टेबलाइजर्स, कार्बामेज़ेपिन 50 milligrams बीडी, लेमोट्रिजीन 25 से शुरू करके। लेमोट्रिजीन आई वुड एक्चुअली अवॉइड, क्योंकि वो रैश कर सकती है किसी भी वक्त, लेकिन अगर आपने करनी है तो 25 पे शुरू करके तो फिर 25 milligram इंक्रीमेंट्स में आप इंक्रीज करेंगे। एल्डरली में आप थोड़ा सा तेज हो सकते हैं, महीने के बाद 50 milligrams की इंक्रीमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप 25 से ऊपर नहीं जाएंगे, डोज भी अपनी जो है वो 200 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लिथियम जो है वो 100 से शुरू करवा के 200 to 600 तक रखेंगे, बिकॉज रीनल क्लियरेंस उसकी इतनी कम है कि आपको 600 से ऊपर जाना ही नहीं पड़ेगा। और बाकी एक्सेप्शनल केसेस में फिर 1200 तक अगर आप चले गए तो दैट्स वेरी एक्सेप्शनल। फिर सोडियम वैल्प्रोएट देख लें तो 100 to 200, यूजुअल 400 और समटाइम्स अप टू 800 और 1 ग्राम, लेकिन जनरल एडल्ट पॉपुलेशन में यू कैन गो अप टू 2 grams। एंग्जियोलिटिक्स अगर क्लोनाज़ेपैम लॉन्गर एक्टिंग देनी है तो 0.5 milligram पर डे देंगे आप, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा के 4 milligrams पर डे पे जाएंगे, लेकिन इन जनरल एडल्ट पॉपुलेशन यू कैन गो अप टू 8, विच इज डबल। डायाजेपैम आप मैक्सिमम 6 milligrams तक जा सकते हैं एल्डरली में, लेकिन जनरल एडल्ट पॉपुलेशन में यू कैन गो अप टू 40 milligrams पर डे। लोराज़ेपैम इसी तरह जनरल एडल्ट में 4 है, उसका आधा 2 milligram हो जाएगा। प्रीगैबलिन है 150 to 300 milligrams पर डे, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन जनरल एडल्ट में यू कैन गो अप टू 600 milligrams, ऑल्दो इट्स अ कंट्रोल ड्रग, क्योंकि ये बेंजोडाइजेपिन्स की तरह ही होती है। ट्राई नॉट टू गिव, बट समटाइम्स यू कैन। ज़ोलपेडेम कम डोज 5 milligrams, ज़ोपिक्लोन maximum 7.5, you start with 3.75।
ठीक है जी। एंटीसाइकोटिक्स, अब हम आ जाते हैं, हमने एल्डरली का कवर कर लिया है, अब हम आ जाते हैं हेपेटिक इम्पेयरमेंट पे। हेपेटिक इम्पेयरमेंट में एंटीसाइकोटिक्स, सल्फराइड एंड एमिसल्फराइड, नो डोजेज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड इफ रीनल फंक्शन इज नॉर्मल। यहाँ पे आपने रीनल फंक्शन देखना है। अगर हेपेटिक इम्पेयरमेंट है भी, ये जनरल एडल्ट्स भी इसमें कवर हो रहे हैं। एक 37 साल का बंदा है जिसको हेपेटाइटिस सी हो गया है और उसके एलएफटी बहुत डिरेंज्ड हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है। आप लेकिन जब आप उसके वो करवाते हैं ईजीएफआर, तो उसका मोर देन 90 मिलीलीटर पर मिनट आता है, तो यू नीड सेम डोज ऑफ सल्फराइड, आपको उसकी कम नहीं करनी। फिर इसी तरह पैलिपेरिडोन जो है, अगर उसकी जो है वो आई थिंक इफ इट इज अ डेपो, तो आपको हो सकता है डोज उसकी डिक्रीज ना करनी पड़े। एंटी डिप्रेसेंट्स में सर्ट्रोलिन और मेटाजोपिन, चूंकि ये हेपेटिकली मेटाबोलाइज होंगे, स्टार्ट एट अ लोअर डोज। अगेन, इफ यू आर नॉट श्योर, जस्ट फॉलो द रूल ऑफ हाफ। लिथियम, यूज प्लाज्मा लेवल्स टू गाइड डोज, उसके आप लेवल्स करवाएंगे। सेडेटिव्स, हेपेटिक इंपेयरमेंट में कोशिश करेंगे ऑक्साजिपैम दें, लोराजिपैम दें, टिमाजिपैम, शॉर्टर एक्टिंग दें, लॉन्गर एक्टिंग दे ही ना हेपेटिक इंपेयरमेंट में। जोपिक्लोन 3.75 मिलीग्राम, ये तो हेपेटिक इंपेयरमेंट में हो गया। अब इससे आगे जो है रीनल इंपेयरमेंट, तो जो ग्रेड 1 होती है, जब EGFR is more than 90 milliliter per minute, it is grade 1 which is normal. grade 2 में 60 to 89 हो जाता है, और उसमें आपको कॉशन की जरूरत होती है। grade 3 is when you may need to stop lithium or reduce amisulpride to a very minimum dose। और लिथियम को तो आप वैसे ही कर देंगे क्योंकि लिथियम इज नेफ्रोटॉक्सिक। तो अक्सर मेरे जो मरीज, जब उनका 59 से नीचे आता है, देन आई प्लान टू स्टॉप देयर लिथियम एंड स्विच देम ऑन वेलप्रोएट। तो फिर इस तरह सीवियर रिडक्शन और आगे किडनी फेलियर लेस देन 15 मिलीलीटर पर मिनट में। और उसके बाद जो है वो प्रिस्क्राइबिंग इन रीनल इंपेयरमेंट, अवॉइड मेडिकेशंस विद QTC प्रोलॉन्गेशन। अच्छा, और अवॉइड मेडिकेशंस विद QTC प्रोलॉन्गेशन, प्रिस्क्राइबिंग इन रीनल इंपेयरमेंट में यह है कि और दूसरी बात यह है, क्योंकि अगर आप दे रहे हैं और इफ दे आर नॉट बीइंग एक्सक्रीटेड, QTC will increase. And what is the outcome of increased QTC? Anybody? What can happen due to QTC prolongation? Next step, medicine. किसी ने अगर मेडिसिन में काम ज्यादा किया हुआ है तो बताएं। एसिस्टली हो सकती है। QTC prolongation हो भी सकती है, लेकिन what is the most common? एसिस्टली हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमियाज। सही, हाँ, यूजुअली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जाता है पेशेंट, दैट्स द मोस्ट कॉमन। अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन, एसिस्टली में भी जा सकता है, लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दैट्स द मोस्ट कॉमन। और अगर आप दे रहे हैं, अच्छा मुझे एक ड्रग इंटरेक्शन बताएं कि इफ यू आर गिविंग फ्यूरोसिमाइड और फ्रूसिमाइड along with quetiapine, what is the risk? Give beta blockers to treat, I don't know. बीटा ब्लॉकर से आप टेकीकार्डिया तो ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन QTC प्रोलॉन्गेशन में तो आपको दवाई ही कम करनी पड़ती है। तो क्लोजापिन के साथ समटाइम्स यू नीड बीटा ब्लॉकर। अच्छा, अगर आप फ्रूसिमाइड और क्यूटायापिन इकट्ठा दे रहे हैं, व्हाट इज द रिस्क? What is the side effect of furosemide? Anyone? Hypokalemia. ठीक है जी, हाइपोकैलेमिया, जब उसका वो पोटाशियम लेवल कम हो जाएगा, और हाइपोकैलेमिया से फिर वो टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस में जाएगा, विच इज
a kind of ventricular fibrillation, very very close to. अगर आप उसका पोटेशियम लेवल कम किए जा रहे हैं फ्रूसिमाइड दे के और आपने साथ कुटायोपिन चलाई हुई है 600 मिलीग्राम्स, तो उसका जो क्यूटीसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइपोकलीमिया इज इन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन। तो इसलिए आपको फ्रूसिमाइड के साथ बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप पोटेशियम स्पेयरिंग दे रहे हैं तो हाइपरकैलेमिया के साथ आपको एहतियात की जरूरत होगी। बिवेयर रिस्क ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो रीनल इंपेयरमेंट में ये आपने एनएमएस का भी ख्याल रखना है। अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक एंड रीनली एक्सक्रीटेड ड्रग्स, अवॉइड लिथियम, एमिसल्प्राइड एंड सल्पीराइड। एमिसल्प्राइड, ये इसके स्पेलिंग्स नोट कर लें। एमिसल्प्राइड, इसमें पी आर इकट्ठे हैं, और जब सल्पीराइड लिखा जाता है तो वह PIR, सल्पीराइड, इस तरह हो जाता है। उसके बाद अवॉइड लॉन्ग half life drugs in renal impairment. And next slide is doses. इसमें क्या रखनी है, कौन सी medications choose करनी है। Antipsychotics, try not to give amisulpride etc, क्योंकि वो renally excreted हो रही हैं, तो आप hepatically excreted वो दें, ज़्यादा बेहतर है। Haloperidol 2 to 6 milligram। Now we are talking about general adult population, और अगर elderly होंगे तो उसमें और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। ओलंजापिन 5 milligrams per day, elderly होंगे तो और भी ज़्यादा एहतियात। एंटी डिप्रेसेंट सिटालोप्रैम जो है वो उसमें QTC प्रोलॉन्गिंग इफेक्ट होता है, तो इसलिए सर्ट्रालिन विल बी द बेस्ट। Mood stabilizers में valproate, carbamazepine, lamotrigine you can give. Anxiolytics में shorter acting lorazepam and zopiclone you can give. And anti-dementia drugs में rivastigmine will be relatively better. So that's it about today's talk. Any questions? No, sir. Thank you, sir. No, Sir, sir, thank you so much. ziprasidone is best for renal impairment. अच्छा, maybe I'm not sure, लेकिन ziprasidone का साइड इफेक्ट क्या है? सर उसमें आई थिंक EPS भी नहीं। QTC prolongation, it's notorious for QTC prolongation. जब हम लोग 2003-4 में जब मैं यहाँ पे आया तो ziprasidone जियोडोन के नाम से आती थी and was very commonly being used. बाद में ये withdraw हो गई थी मार्केट से, और very very rare because of its QTC prolongation. तो try not to use, क्योंकि QTC prolonging drugs आपने वैसे ही नहीं यूज करनी renal impairment में। तो कोशिश करेंगे कि रिस्पेरिडोन दे दें उसकी जगह। Less than 1%, sir, renally excreted, so no अच्छा, dose adjustment. very good. As long as you can measure the QTC, that's fine. फिर आप थोड़ी सी डोज में आप देंगे और उसकी ECGs very frequently करवाते रहेंगे। Frequent monitoring of ECG फिर आपको करनी पड़ेगी, then you can give. ठीक है, any other questions? सर एनी निमोनिक्स जो आपने बनाए हो लाइक फॉर अल्फा एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स इसके ज्यादा है या याद करने के लिए जैसे आप अक्सर बनाते हैं? नहीं, मैंने इसके कोई नहीं बनाए, लेकिन यह है कि in these situations I will go to medicheck.com and check. सही, ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी जी। जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है ना, तो उसमें जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया है उसके नेगेटिव सिम्टम्स के लिए या एज एन एंटी डिप्रेसेंट सर स्टिमुलेंट्स का यूज किया है आपने कभी, और ये कैसा है अगर आपने? Stimulants, mainly modafinil is sometimes used for resistant depression but not for schizophrenia. Schizophrenia के लिए, क्योंकि आप इसमें डोपामीन बढ़ा रहे हैं, तो it's unlikely to treat the psychosis. It can treat resistant depression sometimes, but otherwise I would avoid, because ये hypertension cause करते हैं, और elderly में
hypertension वैसे ही हो रही होती है, especially in Pakistani community. Hypertension is so common. So I would avoid stimulants because of that reason. Thank you. Any other? Okay, so we call off for today. उसकी YouTube इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी. Thank you very much. Allah Hafiz.